अमेजिंग। भैया मारो ना नहीं। Maybe we're sure to see that you know what I changed and then leave it. It was coincidence that we came together. I was just talking about no, I didn't coordinate with it. No, it was coincidence. I'm ready to paint. I'm ready to paint and start. मेरा आइए चलो भाई चलो आ जाओ सच्चे अरे बस यहाँ पे रुकिए। रुकिए ना। सामने देखिए। अच्छे लग रहे एक चाहिए था अपने इसमें तो आए थे भाई सारे के साथ में ये क्या कैसा भाई सॉरी बोल रहे हैं यार। हाँ जी आइए 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 आइए। बंद कर सारा जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा जी ये पहले इधर फिर उधर देखिएगा। सारा दिखेगा मैम रुकिए भैया थैंक यू चलो सारा जी आप ही आइए लोग सब लेट आए ना, खाली एक ही टाइम पे आया और बजू का टाइम पे आया। उसके बाद दिव्या को तो छोड़ दो, दिव्या को मैं बाद में देख लूंगी। दिव्या जी आए यहाँ पर सेम टाइम में इवेंट है इसके लेट और आप लोग हमने आए ऐसा हो नहीं आइए 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 मैम 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 खाया पिया दिया कुछ लोग अभी तो स्टार्ट हुआ यार जी हाँ। जल्दी आने का ना फिर जल्दी नहीं आने का, लेट आने का। हाँ यहाँ पे देखिए सारा जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं अभी कर देना सारा जी अभी बिल बढ़ा के जाएंगे सब लोग चालू है, मैं सुन रही हूँ, मैं नॉट इवन सपोज्ड टू रिएक्ट। ये सब ऐसे ही बोलते हैं। बादाम खा रहे हैं अरे सारा जी सिंपल से दूर खा लो बाबू सारा जी इधर। अरे उस दिन इवेंट में मिल गया था सारा जी थैंक यू सारा जी इधर देख ही नहीं रहे हो। कहाँ? यहाँ पे फोन में सारा जी इधर 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 सामने इधर उसको भी चाहिए अभी। थैंक यू सारा जी, थैंक यू सारा जी। चलो आज भी ना, हो उसको सकता है रुको अभी उसको तो जल्दी खत्म भी किया पेंटिंग। नहीं अरे बस का भेजना भी है तुमको चलो आज गाइस रेडी टिकट खोलो कितना भेजेगा पता? मेरा दे देंगे सेकंड वाला ना
But it's many years. यहाँ पे देखिए मैम मुझे सारा मैम के पेज मिल जाएगा जो नीचे वगैरह टॉप जैसे आपको हम थोड़ा उधर कुछ उधर Red is the color of Devi, it's the feminine force. So red is metaphoric of I'm more like inspired by Picasso and Dali. There's no perfect form, there's no perfect being, and that's what I love, have always loved to do in art. Women have been my key suspects, if I may say. I'm always amazed and questioning how a woman stands so tall and proud of a man's work. And the two women I chose are women I know now for 20 years. And we hang out together, we wine and dine together. And I think this is probably the first time we actually sat quietly. And all I could think about, so I'm a lifestyle lady, I'm a portrait. I've just come and Sarah's asked me to put some emotions on paper. And मेरे emotions are traffic. So who's this two person? So once it's here, she's still busy. Okay. So I don't know if I should That's put that how, in the painting. and that's Krishika Lula. Every day inspires me with the grandeur of her heart, her love, the patience she has, the stability in her life she has. She has great poise and most of all, one of the most compassionate hearts I know. And she's always been an inspiration to me, so I said why not put her on my canvas. Blessed to have some. Wow, Mali, that's lovely. Like my sister who also inspired me. And whenever I do something wrong, so you cannot be good at something. But that is what Yes, and we are sunflowers to each other, we are sisters to each other. पूरा बनाएंगे, इस पे कुछ स्केच वगैरह करेंगे, पेंटिंग करेंगे painting sessions. I have, it's beautiful. इधर आइए ना, इधर को तो अंधेरा है। यहाँ देखिए सर, शिल्पा जी यहाँ सारा In fact, I was in 3 months. Anushka was here and Aprish was here. I was just left on the So then I said, okay, you know what? देख नहीं रहे साथ में हो जाएगा ना तीनों को सारा हमारा भाई कौन है ऐसे जी है अच्छा जी पेंटिंग करो तो बोला तो तो भाई मैं जा रहा हूँ she said bring I said my mouth ऐसा ऐसा खुलता है, so I said her with her big eyes will. Why did I do I tried
trouble her. That's my problem. That's what friends are for. I love you. I'm gonna miss you. And that is good. Such a midget with all these women wearing their 6-inch heels. Stand on your toes. I with you by the way, sing. Video ले लेते हैं, thank you. Hey, yeah, we do. Guys, can we just stop? No, yes, yeah, you're doing that. Really want to experience Take a video for us also, na, saying thank you. Take a video for us. Sorry. Let's tell her. Yeah. मॅम थांबा माव इकडे रश्मिका मंदना आई बाइट करते वेट Nice color, तो. मैम थैंक यू मैम Thank you. चलिए आइए आइए बाइट करते हैं अब बाइट कोई नहीं लेके जाएगा. चलो. हाँ, देखो मेरा नाम भी है ग्रीन में और दिल भी है. भी रखी. आई थिंक इट्स अ फैबुलस थिंग. मेरा पहली बार है मैंने ऐसा इवेंट अटेंड किया है. और सारा एक्चुअली घर के अंदर हमेशा बोलती थी यू नो आर्ट इज़ सो गुड, इट्स सो थेरेप्यूटिक ये वो. तो जब मैं आई थी मैंने कहा चलो सारा से मुलाकात भी हो जाएगी. समथिंग आई नेवर ट्राइड एंड शी उसने एक मतलब इट्स लाइक अ प्रॉपर थिंग कि यू नो यू राइट योर इमोशन ऑन पेपर, फिर तुम कलर्स देखो एंड देन यू रेजोनेट विद इट एंड देन यू पेंट. आई डेंट नो कि मैं क्या लिखूँ. तो मैंने आई जस्ट लुक टू द कलर्स और मेरे जो इर्द गिर्द सब बैठे थे सब ऐसे माहिर पेंटर्स है शायद. और मुझे पेंटिंग नहीं आती और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम सो एक्सप्रेसिव इन द वे आई टॉक. अगर मैं पेंट कर सकती थी तो वो पेंटिंग इतनी कमाल की होती, बट आई कांट डू दैट. बट जैसे आई जस्ट स्टार्टेड यू नो पुटिंग सम ब्रश ऑन द कैनवस एंड ऑल एंड देन ऑटोमेटिकली यू नो it all came up कि मैं कैसी हूँ, what is going on in my mind, what type of a person I am, and I think that's my painting. So मैंने एक sun draw किया है with little water and the sun is rising or setting, either ways you can say that because it's a little orange sky and there are birds flying and I resonate that with myself and the way I think क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि ज़िंदगी में sun always sets and rises. दिन किसी के लिए नहीं रुकता. प्रॉब्लम्स आते हैं जाते हैं बट वी हैव टू मूव ऑन विथ लाइफ. और मेरे हस्बैंड को जब वो इंडिया छोड़ रहे थे 25 साल पहले उनके फादर ने बोला था कि गो फ्लाई, यू आउट ऑफ द नेस्ट नाउ, गो फ्लाई. और मैंने ये मेरी बेटी को बोला था 4 साल पहले जब वो यूनिवर्सिटी गई थी. मैंने कहा जस्ट यू आउट ऑफ द नेस्ट नाउ अनुष्का, जस्ट गो फ्लाई हाई, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग. और कभी मत सोचना कि कोई भी सपना पॉसिबल नहीं है या ये बहुत बड़ा सपना है मुझे देखने के लिए. तो दैट्स द बर्ड्स showing that they've flown out of the nest and they are flying and the sun is setting and rising and the water is flowing and everything is happy. इवन ये आर्ट थेरेपी सेशन था, लेकिन जब आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तब आप किस प्रकार का थेरेपी लेना पसंद करेंगे? ऑनेस्टली मेरे ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं और मैंने बहुत थेरेपी से ही ट्रीट किया है उन्हें. ऑब्वियसली नॉट आर्ट थेरेपी, जैसे मैंने कहा दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस एक्सपीरियंस फॉर मी. लोगों को अगर तकलीफ़ है तो दे शुड एक्चुअली टॉक टू पीपल, टॉक टू प्रोफेशनल्स. ये बहुत ज़रूरी है एंड आई एम श्योर दैट दिस इज़ वन थेरेपी दैट इज़ अंडररेटेड. और उसके बारे में अगर ऐसे इवेंट्स के थ्रू बात की जाए तो इट विल बी फैबुलस. ऑल्सो सारा इज स्टार्टिंग हर ओन फाउंडेशन विच इज़ आर्ट थेरेपी फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन.
और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ फैबुलस ओकेजन और फैबुलस अपॉर्चुनिटी कि बच्चे अपने कैनवस के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, क्योंकि आज के बिजी टाइम में एक्चुअली बात करने के लिए कोई है नहीं, अपनी बात सुनने के लिए कोई है नहीं। तो अगर अपने आप में हम बैठ के अपने कलर्स के थ्रू अपने इमोशंस को दिखा सकते हैं या फील कर सकते हैं, आई थिंक इट्स अ फैबुलस थिंग। सो आई विश सारा अरफीन खान ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हर न्यू प्रोजेक्ट एंड आई एम श्योर द फाउंडेशन इज गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल। इसी के साथ ये आर्ट थेरेपी की बात हुई, अब आप यहाँ हो, बिग बॉस की बात भी तो होनी ही चाहिए। अब बिग बॉस इस बार का कितना ज़्यादा फॉलो करें? मैं तो हर साल फॉलो करती हूँ, सिर्फ लास्ट सीज़न नहीं किया था क्योंकि मैं अंदर थी, लेकिन ये वाला सीज़न भी मैं फॉलो कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बिग बॉस देखने के लिए। ऐसा लगता है पहले जब कुछ हफ्ते पहले जब शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था शिट ये तो मेरा घर है, मेरे घर में ये नए लोग कौन आ गए, लेकिन धीरे धीरे करके आदत हो गई उन लोगों को देखने की। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस बहुत अच्छा है, बहुत एंटरटेनिंग है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है जहाँ से मैं सुनती हूँ। लेकिन मेरे अभी तक कोई फेवरेट नहीं हुए हैं, 6 वीक्स होने को आए हैं और मेरा अभी तक कोई फेवरेट नहीं हुआ है कि आई कैन सी हिम और हर टिल द एंड। सो आई जस्ट जी क्या लगता है कमी कहाँ आ रही है? आई डोंट नो कमी कहाँ आ रही है। आई डोंट नो, पता नहीं एक्चुअली कमी कहाँ आ रही है, क्योंकि कुछ भी कम नहीं है। बिग बॉस है, बिग बॉस के ऊपर और कोई भी नहीं है। एंड या आई जस्ट होप आई फाइंड माई फेवरेट सून एंड द बेस्ट वन विन्स, टेक्स द ट्रॉफी होम। आवेश की रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा सैड किया। एक्चुअली हाँ, आवेश मुझे ऐसा लगा कि जो भी हुआ था उस हफ्ते, आवेश को एक मौका मिलना चाहिए था अपना पॉइंट रखने के लिए। वो हो गया और इविक्ट भी हो गया। ही डिडंट गेट अ चांस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज प्रोबेबली नॉट, इट वाज टू सून। क्या तान्या मित्तल भी आपकी फेवरेट नहीं बन पा रही? तान्या मित्तल ऐसा रिएक्शन आता है तान्या के बारे में बात करने से। एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि फेवरेट ऐसा कोई नहीं है, सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। एंड या उनका नाम सुन के आपके चेहरे पे हंसी आएगी, तो उनके बारे में कुछ कह दीजिए अगर। वेल आई एम वेरी क्यूरियस टू नो जितना तान्या कहती है वो क्या सब सच है। और मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था तो मैं वो मुझे यही सवाल कर रहे थे, तो मैंने कहा आप तो मीडिया हो, आप तो प्रेस हो, क्या आपने जाना है क्या वो बात सही है या गलत है? तो मैम हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, हमको भी कुछ मिला नहीं है, तो अगर आप लोगों को कुछ मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिए। अभिषेक गुजर और अशनूर कौर, इन लोगों का एक लव एंगल देखने को मिल रहा है, वो आप लोगों को किस हद तक सही लगता है आपको? मैंने इतना डीप फॉलो नहीं किया है उनका लव एंगल को। मुझे हाउ कैन आई आंसर वो स्टंट अंदर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बट इफ इट हैपेंस ग्रेट, इफ इट डजंट हैपन इट्स ग्रेट। ओके, सो आप टॉप 3 किसको देखना चाहते हैं? अभी तक थैंक यू मैम। मेरा थैंक यू वेरी मच। फेवरेट नहीं बट टॉप 3 अगर फेवरेट ही नहीं है तो टॉप 3 पे मैं कैसे किसी को देखूंगी? तो बनेगा एक दिन। हाँ तो कंटेस्टेंट है उनको अभी नहीं ना, माइंड ही नहीं सेट हो रहा है ना मेरा। मैंने वही तो कहा आप लोगों को। ओके कोई अपकमिंग है आपका सरप्राइज आपकी तरफ से? मेरी तरफ से मेरा 7 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है जटाधारा, जिसके लिए मैं आपको वापस भी मिलूंगी आई एम श्योर। लेकिन हाँ 7 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है मेरी इतने सालों के बाद बैक इन सिनेमाज। सो प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड प्लीज़ होप यू ऑल लव मी एज मच एज यू ऑल डू। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। बहुत इन्जॉय किया और दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सारा एंड ये बहुत कम समय में हमने प्लान किया और इतने खूबसूरती से हुआ। हमारे फ्रेंड्स हमको सपोर्ट करने आए, कुछ नए लोगों से दोस्ती हुई, मुलाकात हुई। तो ओवरऑल इट वाज, जैसे सारा कहती है, इट्स नॉट अ थेरेपी, इट्स एन एक्सप्रेशन। सो बहुत अच्छा लगा। And I think Madhurima herself does a lot of healing, and she believes in a lot of healing, and I think that's how we connected. Yeah. Because koi bhi creativity ho, it's all about expressing and healing. So yeah. मैंने शक्ति का रूप बनाया, दुर्गा माँ। सो आई डोंट नो, मैं एक्चुअली पेंटिंग नहीं करने वाली थी, ये लोग कर रहे थे तो मुझे लगा कि नहीं मैं भी कुछ करती हूँ, और अपने आप ही वो आया। ऐसा नहीं कि मैंने सोच के बनाया, वो अंदर से वो आया कि आज ये, दैट इज़ व्हाट द होल आफ्टरनून वाज अबाउट, कि सब अपने आप को एक्सप्रेस करें। Shrishika, was it the first time you were painting? That was my first time, and I didn't know that
you know, the way you told us, like, you know, first you write all your negative emotion and then you tear it up and then you start painting. I was like, wow, I never thought of that, you know. It's such a beautiful thought, ki how to get over it and just be calm while you're painting, because you're so calm, you're just enjoying each colors, like, you know, was feeling so beautiful. I didn't want to get up. I said, or karna hai. So exactly, Sarah said, that's how That you're is the right way, like way she was to doing, yeah. connect. And I'm so happy that I could make it today. And of course, enjoyed every moment with all my friends. Malaika, did you experience this before? Have you painted before? So I took my international baccalaureate, which is known now as the IB. Um, I did mine 30 years ago in art and art history, and I had an entire exhibition. I did not realize that art, honestly, isn't the painting itself. It is the person's emotion, and as Sarah so beautifully puts it, that there is no right or wrong, because my right could be her wrong and her right could be my wrong. But inevitably, we all must accept each other's virtues, each other's space, each other's belongings. And what art does allows you to do that. So there is no justification that, oh God, her painting was so beautiful and my painting was so average and ordinary. And she kept saying that don't judge each other's. Because what was she basically saying? We humans must never, we don't have the right to judge. Yeah. Because there is a God and He tests us on the day of our judgment day, and that's where we should leave it. True. Today we should believe in acceptance, and before we take care of anyone else, we should take care of ourselves. And somewhere today I felt that. I felt the need of the hour where I needed to start taking care of myself, because I have children today. My son, one of my son is 18, one of my son, other one is 14, and I have dogs, and I have a demanding husband who I love tremendously, and maybe I spoil him. We But do that, so don't what, we? right? And I give my energy and my love, like Arfeen said, that, you know, what we do is we give ourselves to everybody. He gives himself to everybody. So today I just want to take back more self-care, more self-love, because till you don't love yourself and save yourself, you do not and won't have the energy to save anybody. And that was very releasing. True. Thank you, Sarah. Thank you, Matsi. Thank you, Madhurina. Feel blessed. All I want to say is that when the canvas was in front of us, there was nothing in my mind what I'm going to make. The moment you take that brush and you put it on that canvas, there was a beautiful picture that you can all see. It's just thank you. Yes, especially that part of taking the two negative emotions that are not doing anything for you, writing it on paper. I think at that time my mind was blocked because I was thinking of those negative emotions, and I said, this is no way to start any kind of painting. Exactly. But the moment you started, it was just free flowing. So thank you. Okay, so lastly, what is the key of confidence for all of you? Key of confidence? Loving yourself. I feel it's just self-love is the confidence. आप अपने आप से प्यार करो, आप दुनिया प्यार करोगे. और एक चीज़ है, as women, you know, we love ourselves, you know, everything around us balances well. We are not happy within, nobody is happy. The whole ecosystem shakes if women are not happy. Absolutely. So it's, You know, ek kahavat hai, sorry, my Hindi is not the greatest because I started learning Hindi the day I decided I wanted to marry Zayed. तो एक कहावत है कि आदमी सिर और औरत गला. But remember one thing, without the neck, the head has no movement. Absolutely. So remember that, all you women out there, and all these women here today standing in front of me have been my inspiration. And today I'm proud that I surround myself with women who have been self-driven, confident, living in a man's world. They've shown themselves, shined themselves, and grown themselves into such beautiful sculptures. That's all I can say. Wow. And I feel blessed.
Oh, Thanks, thanks. thank you. Thank you for being there. Thank you. सारा जी क्या कुछ कहना चाहेंगी आपके माइंड में ये कैसा है कि मुझे आर्ट सेशन रखना चाहिए आर्ट थेरेपी सेशन यस बिकॉज एक तो दो चीज़ें हैं. एक मैं अपना फाउंडेशन के थ्रू अंडर प्रिविलेज किड्स को आर्ट एक्सेसिबल करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई कोई होते हैं जो मेरी तरह है, जो जिसमें एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं था. मुझे पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस वक्त आर्ट इतना एक्सप्लोर्ड नहीं था. एंड आई वॉज ऑलवेज टोल्ड कि नो यू नो यू शुड स्टडी स्टडी स्टडी. भाई नहीं करना है तो क्या करूँ. पीपल लाइक मी हु आर आर्टिस्टिक वांट टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स आर्ट. एंड आई जस्ट फील कि आर्ट इंडिया में बहुत अंडररेटेड है. तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आर्ट इज़ नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसिटी फॉर एवरी किड. आई थिंक एक बार एक किड को हमेशा आर्ट या क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस करना चाहिए. और आर्ट जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है. ये आर्ट थेरेपी है. आप कोई भी क्रिएटिविटी यूज़ करें, एक अजीब सा थेरेप्यूटिक संतुष्टि आपको मिलेगा. सो टुडे आई हैव गॉट माई 17 फ्रेंड्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड their emotion on canvas, and it's a beautiful experience जहाँ पे you're resonating with the colors. आप खाली कलर्स को देख रहे हैं. कोई जन है लाइक 17 में से 10 जन है जिन्होंने कभी लाइफ में पेंट ब्रश पिक नहीं किया होगा. बट द आर्ट दे हैव डन, इट्स इनक्रेडिबल. यू नो व्हाई? बिकॉज आज सिखाया नहीं है आर्ट. पेंट ब्रश कैनवस के बारे में कुछ नहीं बोला है. खाली इतना उनको बोला है कि आप बताइए आपके इमोशंस के दौरान आपको कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट होता है, और वो कलर आप पिक कीजिए और अपना इमोशंस कैनवस पे लाइए. एंड दैट्स ऑल दे डिड. एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड दे हैव लव्ड इट एंड आई हैव लव्ड सीइंग देम लव इट. एंड आपने आज अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स को भी बुलाया जैसे कि शिल्पा, दिव्या जी. मैम हो गई. उनका क्या कुछ फीडबैक आया, उनको कितना रिलीफ मिला? बहुत पसंद आया. शिल्पा ने मुझे 10 बार हग किया. दिव्या ने मुझे बोला दैट यू नो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस. एंड लुक एट दिव्या's strokes as well. I mean, she said I've never lifted a paint brush, and the kind of strokes she's done. So it is not about any hard and fast rule, right or wrong, perfection or judgment. It is just about your emotions and simply doing that. क्योंकि meditation में भी अगर आप देखा जाए एक अलग अलग form of meditation होता है. आप close करो अपना eyes. You can't tell that this person was meditating better than me or I was meditating better than. No, it's your journey. So the art that Shilpa has done, the art that Divya has done, the art that Aisha Julka has done, look at their artwork. You can tell कि वो यहाँ से निकला है, यहाँ से नहीं. अब तक का कोई बेस्ट आर्ट या फिर पेंटिंग जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है आपके दिल? मेरी यस, मेरा आपने बनाया होगा या फिर आफिन सर ने बनाया होगा? आफीन सर की पेंटिंग मैं हूँ. मेरा पेंटिंग, मेरा बेस्ट पेंटिंग है आई थिंक हॉर्सेस, बिकॉज आई हैव टू माई पेट हॉर्स इन लंडन, एंड वो मेरा इंस्पिरेशन है. तो मैं हमेशा पता नहीं जब भी पेंट करती हूँ तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड पेंट माई हॉर्स. तो दैट्स माई फेवरेट पेंटिंग. यहाँ पे मैं बोल नहीं सकती हूँ किसी का फेवरेट या कौन सा नहीं अच्छा है पसंद है, बिकॉज सबने अपने इमोशन से किया है तो उनका इमोशन निकला है. तो all of the canvases there are all my favorite. So yeah. आपने जो फाउंडेशन स्टार्ट किया है अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन है अब लोगों के लिए. उसके बारे में थोड़ा एक्सपांड में आप अब बता सकते हैं, क्योंकि हमने देखा आपने 2-3 कैंपेन किया, बच्चे आए, आप लोग उनके साथ ड्राइंग बनाए. तो उस कैंपेन के बारे में या इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा एक्सपांड. आप लोग थे मेरे साथ. आपने देखा कि इंसान को, ठीक है बच्चों को आप खाना दो, एकेडमिक्स दो, किताब दो. जब आर्ट हम लोग ने उनको दिया तो एक अजीब सा खुशी था. लाइक दे लव्ड, दे कुडंट बिलीव इट. और किस एक्साइटमेंट में किड्स जस्ट वर सो हैप्पी कि हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं. और जो पेंटिंग उन्होंने किया, like I can't even tell you, one of them could be the next Picasso or the next Hussein of our country. You never know. It's so important कि हम लोग इनको एक्सपीरियंस दे. जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन एक मौका तो दो किसी को आर्ट का. और आर्ट हमारे कंट्री में या कहीं पे भी बहुत महंगा है. तो मुझे वो चीज़ को हटाना है और उनके लिए अनरीचेबल लगने से पहले आई वांटेड टू बी एक्सेसिबल टू देम सो दे कैन एटलीस्ट एक्सपीरियंस वंस. And I just love seeing the smiles on their faces when I see them paint. So
I'll always do it with or without sponsors, with or without any help. I will do it. इवन जब आप बिग बॉस में थे तभी जो आपके कंटेस्टेंट थे आपके साथ उनको भी आपने ये अपना जो आपकी दिलचस्पी है सब शेयर किए थे? जी जी मैंने किया था. इनफैक्ट एक हमारे सीजन में तो एक आर्ट ये था. आई वाज शॉक्ड द मिनट दे टोल्ड मी इट्स एन आर्ट टास्क. आई डोंट नो, मैं एकदम नम हो गई. सब लोग प्लान कर रहे थे, सब लोग स्ट्रैटेजी बना रहे थे, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ कैनवस पे था. दैट आई वाज लाइक आई एम गोना पेंट और मैं इतना उसमें हो गई कि मुझे पता भी नहीं चला. जब मुझे पेंट पीछे से पड़ा तब मुझे पड़ा ओके फाइन, आई मीन टास्क, आई मीन बिग बॉस टास्क में पूरा इमर्स हो गई थी उसमें. अब आप कितना बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? ऑफ कोर्स टू द टी, पूरा फॉलो कर रही हूँ. किसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें? आपको किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा है? सी अगर आप मुझे कहो कि किसका गेम सबसे अच्छा है तो मुझे लगता है कि तान्या का गेम सबसे अच्छा है. बिकॉज बाप रे गर्ल, मतलब सब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका डैड क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, कितनी साड़ीज पहन रही है. बट दैट इज़ हर गेम. वेदर शी इज़ लाइंग, वेदर शी इज़ बुलशिटिंग, व्हाटएवर इट इज़, इट्स हर गेम एंड it's working for her. So her game is good. I like Amal Malik as a person. I think वो अमिताभ बच्चन का जैसा था ना, एंग्री young man. So he's giving that kind of vibe. Good. He's standing up for what he believes in. I like Shabazz as well, क्योंकि जब से वो आया है थोड़ा एक fun element हुआ है. Bashir, his personality as in whole is nice. So I like these guys. कहीं ना कहीं आपको लगता है अमाल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है बिग बॉस के बारे में? थोड़ा फेवरेटिज्म तो होगा ही ना. लाइक इफ़ यू आर माई फ्रेंड आई विल फेवरेटाइज यू मोर देन आई वुड डू इट फॉर अदर्स. तो थोड़ा है, लेकिन अगर हम इस बात की चर्चा कर ही रहे तो लास्ट वीकेंड के बारे में सलमान सर ने अमाल को काफ़ी बैशिंग भी दिया था. सो यू नो इट्स जस्ट वीक बाय वीक हाउ इट गोज़. अभिषेक बजाज और अश्नोर के लव एंड के बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से उनके एज गैप को भी लेके काफ़ी मुद्दा बनाया जा रहा है और उनके प्यार को. यार मुद्दा तो ऑडियंस सबका ही बनाएगी ना. मतलब वो उसमें है नहीं, तो अगर आपको एक ट्रू लव नहीं मिल रहा है तो आप तो मुद्दा वैसे ही बनाने वाले हो. मेरे और आफरीन के बारे में कितना मुद्दा बनाते हो. येस आई मीन वी हैव एन एज गैप, येस. सो बट पीपल टेल मी अभी तक आई एम ट्रोल्ड कि जब भी आफरीन के साथ अगर आप मेरा कोई भी स्पॉटिंग देखोगे तो आप कमेंट्स पढ़ो नीचे, ओ शी वेंट फॉर मनी एंड दिस एंड दैट. यू नो व्हाट, गेट लॉस्ट. आई डिड. सो आपने देखा नहीं कि मेरा इंटेंशन क्या था. मी एंड आफरीन कनेक्टेड ऑन अ वेरी इंटेलेक्चुअल लेवल. आई थिंक मुझे इमेच्योरिटी पसंद नहीं है. सो आई एम वेरी इमेच्योर पर्सन. सो दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स आफरीन. एंड ऑडियंस कहेगी तो बकेगी तो वैसे ही बकेगी. सो अशनूर और अभिषेक आई डोंट थिंक सो दैट इज एज मच एज एज डिफरेंस एंड दे लुक क्यूट टुगेदर. सो व्हाई नॉट. What couple I really missed in Big Boss is Natalia and Mridul as well. So I wish कि Natalia नहीं out होती ताकि वो मृदुल का वो जो फननेस वो निकल आता. और बिल्कुल आपकी तरफ से क्या सरप्राइज है अब इसके अलावा? मैं तो स्पॉन्टेनियस हूँ. आगे देखो और क्या है. Anything for your lovely fans? I just love all my fans and I just feel that they should follow their heart. अपने दिल को follow करो और बाहर में जाए दुनिया. Thank you.